Welcome to our show, Behind the S, with your very excited hosts, Carol and Fabiha, social distancing from Karachi and Montreal. So, in today's show, we have a very exceptional guest. He is a Pakistani musician and composer known for directing the popular Pakistani ensemble Sounds of Karachi. Aside from that, he is a quantum physics major, something that most people do not know about him. And one of his major aims as a musician is to build musical ties between Western and Eastern cultures. For the younger generation of aspiring musicians, he is not only known as an artist but also a mentor. So here's welcoming Ehsan Bari. Hey Ehsan, how are you doing? I'm good, guys. How are you? Thank you for taking time out to be on this podcast. Yes, we're so Thank you. excited to have you here. Same here. So when we introduced you to our audience and gave them a little history about Ehsan Bari, I realized that you have a lot of things under your belt. And while that's amazing, how are you doing all of this? How do you manage? I think naturally, organically, everything is like organically happening to That's me. great. It's happening to me. I'm not doing anything. Tell us a little bit about the inception of your journey. How did you start doing what you do? Okay, बचपन से मोटिवेटेड था. मैं बचपन से साउंड सुनता था अपने कानों में. मुझे बहुत ज़्यादा इंस्पायर करती थी. I was 8 years old when I made my first guitar out of wood, a piece of wood. उसके ऊपर चीज़ें Amazing. लगा के मैंने एक तार वार लगा के बनाया था. And then थोड़ा सा बड़ा हुआ तो मेरे कज़न के पास एक कीबोर्ड था. We used to play one tune on it. तुझे देखा तो ये जाना सनम, वो उसने मुझे सिखा दी. और फिर next day I was working out tunes. बस खुद से मैं बजा रहा था. तो आई थिंक उसने मुझे कहा कि यार ये तो सीन है तुम्हारे अंदर कुछ नेचुरली. और फिर मेरी दोस्ती हुई एक लड़के से जो मेरे अपार्टमेंट में रहता था, जिससे असल में मेरी लड़ाई होती थी बहुत ज्यादा. उसको मार भी चुका था मैं 4-5 बार. वाह, क्या बात है. उसको लड़के को, लेकिन फिर मैंने दोस्त बना लिया क्योंकि उसके पास गिटार्स थे. तो उसके पास गया. That guy introduced me to the music of Amir Zaki. When I was a kid, तो I saw आलमगीर साहब या जुनैद जमशेद मेरे ख्याल से कोई गिटार बजा रहे थे. कुछ गिटार बिग बॉडी. And I asked my father कि यार I need this. And I remember I was 5 or 6 I think. 6 I think. And I still remember. पापा ने कहा कि ये तो 50,000 रुपए का है. बहुत महंगा था उस टाइम. 50,000 रुपए सोच भी नहीं सकता था कोई. You know, I could never think कि ये मेरे पास ये गिटार्स जो हैं ब्रांडेड गिटार्स होंगे. So you know I'm blessed कि वो पहुंच गया वहां तक कि वो आ गई मेरे पास. Yeah, that was my बचपन. Let's discuss about the current situation that is impacting the entire globe, which is coronavirus. How are you and the music industry in general coping with this pandemic? I mean, जिस तरह से बाकी चीजों को इफेक्ट कर रहा है, वो उसी तरह से म्यूजिक इंडस्ट्री को भी इफेक्ट कर रहा है. म्यूजिशियंस इन जनरल जो हैं वो बड़े खुशबाश रहने वाले लोग होते हैं अंदर से. वैसे डिप्रेस्ड होते हैं, डाउनर में भी गुजर रहे होते हैं, बट दे लव टू एंटरटेन पीपल. एंड दिस इज अ डिजिटल एज, राइट? Of course. So I'm so glad कि all of my friends like and all of my seniors, in fact अभी मैं देख रहा था बिलाल मकसूद की वीडियो, वो गाना गा रहे थे. और all of these musicians like अली हमजा भी सेशंस कर रहा है. Everyone is coming live and trying to connect with people. Of course affect करेगी. 3-4 महीने बाद उसका जरा ज्यादा बड़ा रिजल्ट आएगा. It's not going to be easy for people like us because अभी near future के अंदर हमें म्यूजिक परफॉर्मेंसेस नहीं होती हुई नजर आती. बिल्कुल. लेकिन ये जो डिजिटल एज है, इसका सहारा लेते हुए म्यूजिशियंस बहुत आगे निकल सकते हैं. बहुत कुछ होगा और बहुत नई चीजें आएंगी. Knowing you, I feel like you've always found a way out of troubling times, किसी न किसी तरह से. So this time, what is the silver lining for you? What do you see coming out of this lockdown? I mean, I'm loving it. I'm spending time with my family. I've not been able to do it for a while now. मैं खाने बना रहा हूँ, मैं music बना रहा हूँ. I'm producing an EP. I am helping out a lot of my friends. Yeah. So that's what I'm up to. See, my philosophy is कि जब तक सांस चल रही है उस वक्त तक आप ऑन है, आपका गेम ऑन है. सिल्वर लाइन है ना, ये हमेशा ही होती है, सामने होती है जब आपके पास. दिस इज अ लॉ ऑफ फिजिक्स. तो जब कोई मुसीबत आती है तो उसका सोल्यूशन पहले होता है, मौजूद होता है. वो आपको नजर नहीं आ रहा हो वो अलग बात है. तो वो सिल्वर लाइन हमेशा होती है, विजिबल नहीं होती. मुझे लगता है ऐसे.
how do you live as a musician in a nation that does not offer its artists many platforms? यार ये बड़ी सब्जेक्टिव हो जाती है ये बात. हर जी, किसी जी. की अपनी अपनी सोच होती है जिसको वो लेके चल रहा होता है. मेरा अपना ख्याल रही है, हाँ ये बहुत मुश्किल है पाकिस्तान जैसी जगह पे जहाँ म्यूजिक को मे बी एक रिस्पेक्टेबल प्रोफेशन भी नहीं समझा जाता. एंड आई थिंक दैट वाज माय किक व्हेन आई स्टार्टेड ऑफ एज अ म्यूजिशियन, एज अ परफॉर्मर. तो मैंने एक रॉक बैंड के साथ स्टार्ट किया इन 2000 बेसिकली 2001. बट जब 2005 में मैं नापा गया म्यूजिक पढ़ने के लिए, तो दैट वाज माय किक. सो आई फील के everyone who's becoming a musician or artist or anything, 90% of the people I meet these days, especially the young people, this is I think precisely the answer of your question. Degree pursue कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, but वो kick नहीं है. You know, I would say कि मुझे business administration के मैं IB अक्सर lectures देने या कुछ करने चीजें जाता हूँ या judge करने जाता हूँ. And I ask them कि what are you doing? Why are you doing? Why finance? Why marketing? And they don't know. They're like, okay, इसके अंदर scope ज़्यादा है. मतलब, what do you mean by scope ज़्यादा है? Job ज़्यादा है, पैसे ज़्यादा मिलेंगे. What is driving you? What is the force that is driving you to do this? Have you figured this out? So most of the people these days have not figured out what is the driving force. What would you advise to someone जो आपके background से नहीं आ रहा है या आपके passion से नहीं आ रहा है? How would they survive? Yeah, I would be very honest. ठीक है. If you think कि आपका patience level कम है और आपके अंदर बर्दाश्त कम है और आप वक्त ज़ाया करना नहीं समझते, तो फिर आप ना करें. ये मैं बिल्कुल honest होके कह रहा हूँ. Because you know the way I did it, I had to invest like almost 10-15 years of my life. ठीक है. Straight ahead. So you know, अपना नाम बनाने के लिए रिस्क लेने पड़ते हैं आपको दुनिया में. ठीक है. तो वो मैं निकल गया. I went to studios randomly. There's this guy Faisal Rafi, मैं उसके स्टूडियो पहुंच गया और मैं पढ़ गया बस वहाँ पे. And he literally, उन्होंने मुझे सीरियस लिया, उन्होंने मुझे काम दिया. तारें लगाने से मैं शुरू हुआ. उसके बाद मुझे कंपोज करने के लिए मिला. Started composing. जितने भी पैसे मिले उसको कभी वो नहीं बनाया कि यार ये कम पैसे हैं या ज्यादा पैसे हैं, क्योंकि वो बस मिल रहे थे. एंड आई वाज लाइक कि आज 5,000 रुपए मिल रहे हैं, कल ये 5 लाख रुपए भी होंगे. उसके बाद मैंने छोटी चीजें शुरू की. मैंने म्यूजिक स्कूल्स को म्यूजिक करिकुलम बना के दिया. One needs to be creative. Like, you know, your aim was to build platforms and, you know, create avenues for people, because this obviously everyone knows that this nation does not have so many platforms. Exactly. So, you know, to build that platform and encourage people to come out and play music, at the end of the day, you need the passion and the patience. For sure. और जो आपको नहीं मिला, आप चाहते कि जो aspiring जो musicians हैं, they get what you were not able to get. मेरे पास जिंदगी में कभी भी कोई म्यूजिक वैसे सीखने आया. Apart from the job I'm doing, I've never charged anything. मैंने कभी किसी से पैसे नहीं लिए म्यूजिक सिखाने के. Never. क्योंकि वो बिल्कुल मेरे लिए बड़ी इसकी स्पिरिचुअल हैसियत भी है म्यूजिक की, मौसीकी की. मुझे ऐसा लगता है कि तोहफा मिला है, तो और मुझे क्योंकि इतनी आराम से मिल गया, अल्लाह ताला ने मुझे दे दिया हाथों में प्लेट में रख के, तो मुझे मेरा फर्ज है कि मैं इसको आगे ट्रांसफर करूं, वरना फिर बात पूरी नहीं होगी. ये चेन रुकनी नहीं चाहिए. And that's such a great way to think. I think this is how one should be thinking. Most people don't think like that. This is actually very unique thinking. You'd be surprised. हाँ, मतलब हम दूर क्यों जाएं, हम जरा अपने क्लासिकल म्यूजिशियंस को देख लेते हैं. मोस्ट ऑफ देम, इसमें बहुत लोगों को बुरी लगती है ये बात, और बहुत लोगों को ये पॉडकास्ट भी सुनेंगे उनको भी बुरी लगेगी, लेकिन जो बात सच है वो सच है. मोस्ट ऑफ दीस क्लासिकल म्यूजिशियंस आर ऑलवेज लाइक दे नॉट हैप्पी विद द सिचुएशन. ये पॉप म्यूजिक इज टेकिंग ओवर, ये और वो. ना, हाउ मच हैव यू, मतलब आपने कितना मेहनत की इस आर्ट को आगे फेंकने की, इसको आसान तरीके से पेश करने की. आपके अंदर कितनी लगन थी सिखाने की. क्या आपने अपने घराने से बाहर लोगों को सिखाने की जस्तुजू रखी? क्या आपने were you like sincere enough to, you know, honest enough to like spread this message? And now if you're saying कि यार ये म्यूजिक तो कोई सुनता नहीं है, तो आपने कितना फैला दिया इसको. So I think that's what you've got. You've got this passion, burning desire. चीज जब आप खुद हासिल करते हैं तो उसकी वर्थ एक मुख्तलिफ होती है. बिल्कुल, उसकी वर्थ ही अलग होती है. And also you have
you're more empathetic towards people, and I think you're also more humble towards your profession. I think I was lucky enough कि मुझे भी उस्ताद इसी तरह मिले जो अपने कैरियर के अंदर मुझे बड़े उस्ताद मिले. I think I've learned music from Pakistan's best. Tell us something interesting that you've gone through. I know that you perform. So what goes on backstage before you guys come on stage? Is there anything ever happen? Anything interesting कि कोई नहीं पहुंचा तो ये कोई मसला हुआ है last minute? Something that you remember? मतलब यूएस टूर हमारा शुरू हुआ है और हम एयरपोर्ट पे पहुंचे हैं और हमारा बेसिकली जो टूर था वो यूएस स्टेट डिपार्टमेंट फंडेड था. ठीक है ना. उन्होंने पूरी दुनिया से ऑडिशन करते हैं और फिर वो बैंड्स चुनते हैं और आर्टिस्ट. तो पाकिस्तान से सनम मारवी और अपना साउंड्स ऑफ कराची को चुना था. तो हम 10 लोग जा रहे हैं और हम सब पहुंच गए एयरपोर्ट पे. अबू धाबी पे हमारी जो है वो सिक्योरिटी क्लियरेंस हो रही है, सिक्योरिटी चेक हो रहा है और सारा कुछ हो रहा है. अब हम बॉर्डर चेक वो अबू धाबी पे ही हो जाता है यूएस के लिए. तो वहां पर हो रहा है और 9 बंदे क्लियर हो गए और हमारा ड्रमर जो है उसका सर्विस नंबर ब्लॉक हो गया. इट मींस ही कैन नॉट फ्लाई. एंड यू लाइक क्या हो गया भाई, हमें यूएस उतरना है और अगली सुबह दोपहर में हमारा कॉन्सर्ट है. किस तरह की बात हो रही है. उन्होंने कहा नहीं आप जाओ बस सारे नोट. तो जहाज में बैठते हुए अब वो बंदा उस बंदे को उन्होंने फ्लाई करवाया है पाकिस्तान वापस. और मैंने वहां पर वो स्टेट डिपार्टमेंट में और व्हाइट हाउस के लोगों को फोन कर करके रोना शुरू कर दिया कि मेरा बैंड यूएस टूर पे आ रहा है. हमने 4 महीने रिहर्स की थी. बहुत सारे लोगों ने छोड़ दिया था बैंड और वो कह रहे थे कि हमें यूएस टूर नहीं करना, हमें 4 महीने हम नहीं कर सकते रिहर्स. 4 मंथ्स मैंने 7 से 8 घंटे एवरी डे रिहर्स कराया था बैंड को. तो मैं अजीब हो गया. मैंने कहा ड्रमर ही नहीं है तो क्या होगा. जहाज पे चढ़ने से पहले मुझे स्टेट डिपार्टमेंट की जो हेड थी इस प्रोग्राम की, उसने फोन किया. उसने कहा एक ड्रमर है एलन स्मिथ और वो यहाँ पर अमेरिका में मौजूद है. मैंने कहा वो जहां भी है उसको फ्लाई करके डीसी पहुंचवाओ बस फौरन. और मैं जहाज में बैठ गया. जब मैं उतरा डीसी तो हमारा ड्रमर ऑफ कोर्स नहीं था. उसको वहां पर फिर उन्होंने सर्विस नंबर खुलवाया और वो उसको फ्लाई बैक करवा रहे थे. बट इस चक्कर में वो डीसी के शोज नहीं बजा पाता क्योंकि वो पहुंचता. नाउ एलन स्मिथ आया है और एलन स्मिथ इज पाकिस्तान's टॉप ड्रमर. आई थिंक ही इज वन ऑफ द लेजेंड. ठीक है ना. मैं बचपन से देख रहा हूँ. जिंदगी में कभी एलन स्मिथ के साथ नहीं बजा सका और वहां पर बैठे हुए हम. और एलन मुझसे कह रहा है कि एलन स्मिथ इज सेइंग कि मैंने कहा एलन भाई क्या सीन है. ही सेड कि यार so that was like something जो मैं कभी भी नहीं भूलूंगा कि यार वो 2 कॉन्सर्ट्स हमने बजाए थे और वो ऐसे कॉन्सर्ट्स थे कि मैं क्योंकि मुंह से भी ड्रम्स बजाता हूँ, मैं थोड़ा सा बीट बॉक्सिंग और ये सारा कुछ करता हूँ. तो मैंने तरीका निकाला था. मैंने कहा एलन भाई I'll just come to you and I'll read the beats like and he's like okay बस फिर तो हो गया सेट. फिर वो आरिफ आया. This was one of the memory जो मुझे जिंदगी भर याद रहेगी कि यार मुश्किल कितनी भी हो आप अगर खड़े रहते हैं सुकून से तो सब अच्छा हो जाता है. That is actually really funny because amazing. It's actually a little freaky and you have to have a lot of faith. It is like you playing concert. आप जॉन एफ कैनेडी सेंटर में हम पहला गिग बजा रहे थे एंड वहां रहमान बजा कर गए थे कोई 10-15 दिन पहले उस स्टेज पे. और हम कह रहे हैं यार और तुम्हारा ड्रमर ही नहीं है. You know just saying ये आपकी तमाम बड़े स्क्रिप्चर्स में किताबों में सब जगह लिखा हुआ है कि आप अगर नेचर की विल पे अपने आप को छोड़ देते हैं ना तो अल्लाह मियां के बेहतर प्लान्स होते हैं. नेचर के आपके लिए जो प्लान्स होते हैं वो बहुत बेहतर प्लान्स होते हैं. यू नो आप जस्ट लेट इट गो. तो I completely agree with that. How does your education actually benefit you as an artist? I mean there's बहुत सारी मैथमेटिक्स और फिजिक्स जो है म्यूजिक की ही ब्रांचेस हैं एक तरह से मेरे लिए. ठीक है. There's music and everything. I would suggest everyone this book Mysticism of Sound and Music by Hazrat Inayat Khan. Just go through this book. This is a brilliant book. It'll tell you how everything in the universe is basically music. Because हम कहते हैं कि vibration होती है तो exist करती है चीज़. ठीक है. जी. There's nothing that exists and does not vibrate. Vibration होगी तो चीज़ exist करेगी. And that's कोई भी चीज़ जो vibrate करती है, it possesses a sound. It possesses sound. Okay. That is sound basically. वो कुछ साउंड है जो हमें सुनाई नहीं देती, कुछ सुनाई देती हैं. फिजिक्स ने मुझे बहुत हेल्प किया in understanding the concept of the timeless concept of time basically, the eternal concept of time. Also, like how it has affected your vision, like perspective, right? Of course. The way you're processing music. It does. आप
ऑफ कोर्स मेरा फिजिक्स का बैकग्राउंड था, मैं फिजिक्स के हवाले से चीज़ों को देखता था और फिर म्यूज़िक आ गया मेरी ज़िंदगी के अंदर। मैं शुरू से थ्योरी के अंदर ज़्यादा इंटरेस्टेड था म्यूज़िक की। मुझे नापा में बैन कर दिया था लाइब्रेरी के अंदर जाने के लिए इसी वजह से। Because you still love reading? हाँ, मैं बहुत ज़्यादा पढ़ गया था। मैं खुद भी अब मानता हूँ कि उस उम्र में इतनी सारी चीज़ें पता होना ज़रूरी नहीं थी जितना मैं कर गया था। उम्र के हिसाब से होती हैं चीज़ें, या उम्र के हिसाब से होती हैं, वो नहीं था मेरी उम्र के हिसाब से। अच्छा, ऐसा है तो अब एक चीज़ मुझे बताओ, what is your inner personal dream, that one goal that जिंदगी में किसी भी पॉइंट पे that you want to achieve? यार म्यूजिक के सहारे ही होगा वो। मुझे ऐसा लगता है इंसान की तख्लीक बहुत प्यार से हुई। जी, माय पर्सनल पर्सपेक्टिव, इंसान की तख्लीक बहुत प्यार से हुई है। इंसान को अल्लाह ताला ने बहुत प्यार से बनाया है, दूसरी बहुत सारी मखलूकात पर फौकियत दी है, अफजल रखा है, ठीक है। और इंसान का मकसद सिर्फ प्यार करना है। मेरी जिंदगी का एक बहुत बड़ा मकसद है कि इंसान के अंदर की जो मैक्सिमम कैपेसिटी है ऑफ पॉजिटिव एनर्जी, वो किसी तरह मैं एक्सप्लोर करवाऊं लोगों को। वो म्यूजिक के थ्रू होगी या मैं कोई फिल्म्स बनाऊंगा, मैं क्या प्रोड्यूस करूंगा, आई हैव नो आइडिया, बट यू नो आई एम स्लोली मूविंग टुवर्ड्स इट। मैं आहिस्ता आहिस्ता, दिस इज माय एम इन लाइफ कि मैं इस तरह की कोई चीज करूं कि जो इंसानों को उनके पॉजिटिव मैक्सिमम जो उनका पोटेंशियल है पॉजिटिविटी का, उससे रोशनास करवाएं। So I remember that earlier on in our conversation we had spoken about how you wanted to merge Eastern and Western vocals and how you wanted to explore new genres and forms in South Asian music. मेरा पर्सनली ये ख्याल है कि साउथ एशियन म्यूजिक के अंदर जिस तरह की एवोल्यूशन होनी चाहिए थी वो नहीं हो सकी, ठीक है। और ये सिलसिला तकरीबन 100 साल पहले रुक गया, ठीक है। मैं थोड़ा सा डिटेल के अंदर जाना पसंद करूंगा इस बात की कि कैसे हुआ। लास्ट एवोल्यूशनरी स्टेप जो हमने उठाया साउथ एशिया के अंदर, वो विश्व नारायण भातखंडे नामी एक शख्स थे जिन्होंने एक किताब लिखी, ठीक है। और वो किताब जो है उसके अंदर उन्होंने एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स जो म्यूजिकल सिस्टम था इंडिया का, उसको उन्होंने बहुत बेसिक कर दिया स्टूडेंट्स के लिए। उन्होंने ऐसा सिस्टम बना लिया कि एकेडमिक कर दिया जरा उन्होंने उसको, घराना सिस्टम से निकल गया थोड़ा सा। इसी वजह से तमाम घराने वाले उनको जरा बुरा भला बोलते हैं आज के। वो भातखंडे का सिस्टम फ्लॉप सिस्टम है, उसने खत्म कर दिया। दिस इज व्हाट वी डिड विद एवोल्यूशन। हमने हर एवोल्यूशनरी बंदे को जो है वो एक्सेप्ट नहीं किया साउथ एशिया के अंदर और उसको बंद कर दिया। अच्छा, मैं इसको कंपेयर करता हूँ, जरा एक कंपैरेटिव एनालिसिस करते हैं इसका वेस्टर्न म्यूजिक के साथ। हम स्टार्ट करते हैं एज ऑफ पॉलीफोनी जब स्टार्ट हुई ना, रेनेसांस के वक्त के बाद है तो पॉलीफोनी की एज स्टार्ट होती है। और 1500s आगे बढ़ के जब आप 1600s के अंदर आते हैं बरूद टाइम के अंदर, तो एज ऑफ पॉलीफोनी अपनी पीक पे पहुंच रही है, यानी कि हार्मनी इवॉल्व हो रही है, ठीक है जी। ऑर्केस्ट्रल कॉम्पोजिशंस बननी शुरू हो गई हैं, ठीक है। और 1600s के अंदर 1650 तक सेबेस्टियन बाख टाइप म्यूजिशियन आ चुके हैं। उससे पहले और म्यूजिशियंस गुजर चुके हैं जो कि काफी काम कर चुके हैं, और सिम्फनी ऑर्केस्ट्रा की फाउंडेशन रखी जा रही है एक तरह से। ओपरा बन चुका है इटली के अंदर 1590s में, और हम आगे बढ़ रहे हैं। और बाख टाइप म्यूजिशियंस आते हैं जिन्होंने मॉडर्न ट्यूनिंग सिस्टम को बड़ा सपोर्ट किया। मॉडर्न ट्यूनिंग सिस्टम आ गया, स्टैंडर्ड ट्यूनिंग सिस्टम आ गया। अब आप देखें किस तरह से वेस्ट इस तरह से म्यूजिक को स्ट्रेटन अप कर रहा है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक आउटरीच हो इस म्यूजिक की, और ज्यादा से ज्यादा लोग समझ सकें, ठीक है। अच्छा, एवोल्यूशन हो रही है, थ्योरेटिकल एवोल्यूशन भी हो रही है, नए नए थ्योरीज बन रही हैं, नए नए कॉर्ड्स आ रहे हैं, नई नई चीजें हो रही हैं। 1700s के अंदर जो है वो मोजार्ट टाइप लोग आ जाते हैं, जोसेफ हेडन आ जाते हैं, फादर ऑफ सिम्फनी कहलाते हैं वो। उन्होंने सिम्फनी में इतना काम कर दिया होता है। मोजार्ट आ जाते हैं जो कि एक बिल्कुल ही अलग एक पर्सपेक्टिव पेश कर देते हैं, कॉम्प्लेक्स तरीन, किचमिच मिला हुआ, लेकिन येट वेरी ब्यूटीफुल। आज उनके मरने के बाद भी उनकी मेलोडीज स्कूल्स में नर्सरी राइम्स में होती हैं, ठीक है। अच्छा जी, हम फिर आगे बढ़ते हैं। मैं आपको जल्दी बता रहा हूँ कि देखें कितनी सारी एवोल्यूशन हुई है 400 साल के अंदर वहां पे, ठीक है। वो निकलते हैं आगे क्लासिकल म्यूजिक के बाद रोमांटिक एरा आ जाता है, बेथोवेन आ जाते हैं जो कि कस्प हैं रोमांटिक एरा और क्लासिकल एरा में। वो नई चीजें करते हैं, थ्योरी इवॉल्व होती है। 1900s में हम आ जाते हैं, मॉडर्न म्यूजिशियंस आ जाते हैं जिनको अटोनल म्यूजिशियंस भी कहा जाता है, पीपल लाइक आर्नल्ड शॉनबर्ग, ठीक है ना। वो एक किताब लिख देते हैं, 1932 में उन्होंने किताब लिखी थी हार्मोनी लीडर।
वो आ जाती है, वो किताब एक नई टेक्निक ले आती है, 12 टोन टेक्निक। पुराना सब कुछ कैंसिल हो जाता है, कैंसिल एज इन कि पुरानी चीजें लोग कर रहे हैं। उस वक्त उनको भी वेस्ट में बहुत सारे लोगों ने क्रिटिसाइज किया कि यार ये तो म्यूजिकल ही नहीं है, बट उसने फिर उनके एसेस आपको मिल जाएंगे बहुत सारे लिखे हुए जिसमें उन्होंने उन क्रिटिक्स को जवाब दिया। आई थिंक एवरीवन शुड गो एंड रीड व्हाट आर्नल्ड शॉनबर्ग हैड टू से अबाउट न्यू म्यूजिक। क्या कहता था वो कहता था कि ब्यूटी की डेफिनेशन आपने कैसे फिक्स कर ली भाई कि यही ब्यूटी है? आप कैसे डिसाइड कर सकते हैं कि ये खूबसूरती है और ये खूबसूरती नहीं है? मैं वापस आता हूँ साउथ एशिया में, जहां पर मेरा मसला शुरू होता है, जो मेरा पॉइंट ऑफ रिसर्च है। मैं ये कहता हूँ कि ठीक है, राग हैं, हमने ख्याल गायकी इवॉल्व हुई। वो 700 साल पहले अमीर खुसरो एक बंदा पैदा हुआ था, उसने आखिरी दफा मेरे ख्याल से कोई बड़ी एवोल्यूशन अगर की है तो उसने की है कि वो पर्शिया से और टर्की से फॉर्म्स लेकर आया और उसने नई चीजें बनाई। ठीक है, कवाली इजाद वो थी एवोल्यूशन मेरे हिसाब से। ठीक है, कवाली इजाद कर दी, ख्याल गायकी में भी बड़ा कंट्रीब्यूशन है, तराना इजाद किया, नए डायलेक्ट्स इजाद किए म्यूजिक के अंदर, नई चीजें लेकर आए, नई सोच लेकर आए। ठीक है, वो प्रोसेस रुक गया। ये अमीर खुसरो भी 700 साल पुरानी कहानी है तकरीबन। ठीक है, तकरीबन उसके बाद क्या हुआ, वो सिलसिला रुक गया ना। नई आपको गजल के बाद कोई नया जॉनरा नहीं है हमारे पास। गजल वाज द लास्ट थिंग दैट केम। कहने का मकसद ये है कि वो एवोल्यूशन रुक गई और हम वहीं पे स्टैग्नेंट रह गए। हम अभी तक उसी चीज को रोई जा रहे हैं और यही वजह है कि अ लॉट ऑफ यंग पीपल दे डोंट वांट टू लर्न क्लासिकल म्यूजिक, क्योंकि वो वक्त के साथ आगे नहीं बढ़ा, वक्त के साथ उसमें जिद्दत नहीं पैदा हुई। ठीक है, तो मुझे लगता है कि ये होना चाहिए, नए जॉनरास निकलेंगे, आगे निकलेंगे। मैं नहीं निकालूंगा तो यकीनन मैं कुछ ऐसी शायद एवोल्यूशनरी कुछ स्टेप्स ले लूं जिससे आगे आने वाले जो है to make a solid change into the market, you need to be the change. That's where your aim, right? Yeah. That's amazing. So I have learned so much from you, Ehsan. I don't know anything about music, and now you were talking about so many people के evolution कैसे हुआ music का. We need more people like you. We need more artists like you. So if you're mentoring the new generation, they will turn out to be ahead of you, like better than you in the future. अरे मैं खुशी से पागल हो जाता हूँ ये सोच कि मैं अगर मुझे मेरे स्टूडेंट्स कहते, मुझे आमिर ज़की ने एक दफा कहा, मैं गिटार बजा रहा था और मैं गा भी रहा था। He was leaving, he saw me playing guitar, he said कि यार बीस्ट पैदा कर दिया हमने। ठीक है, तो उसने मुझे कहा कि यार तू बीस्ट है। मेरी ख्वाहिश ऐसी है कि मुझसे मल्टीप्लाई बाय 10 के बीस्ट मैं देखना चाहता हूँ। पाकिस्तान में नहीं, दुनिया भर में मेरे म्यूजिक स्टूडेंट्स हैं और मैं चाहता हूँ कि वो ज्यादा बड़े काम करें। I think that's something that if most people tried to adopt this kind of behavior, we'd be so much more ahead. Now that we're almost ending this podcast, I have a quick question to ask you, and you have to respond in like 3 words. Aside from reading music, what are 3 things that you love to do? Going out in the nature, farming, cooking. Okay. And spending time with people I love. चलो सही है, fair enough. I mean, at least मुझे पता तो है कि म्यूजिक के अलावा तुम कुछ और करते हो. It was really nice having you. Thank you so much, Ehsan, for taking time out for our podcast. I've learned so much about you. So much. And thank you so much. Thanks for having me, guys. Okay, bye-bye. Bye.